इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में आपके साथ दिव्या पेन्यूली। वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उसमें नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बेंगलुरु में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का कांग्रेस पर निशाना, कहा कांग्रेस का चौंकाने वाला और अफसोसजनक व्यवहार। सागर में आजाद समाज पार्टी ने की प्रेस वार्ता, 28 फरवरी को संकल्प रैली निकालने का किया ऐलान, कहा जनता के बीच पहुंचाएंगे पार्टी की नीतियां। संगरूर के धूरी में शहरवासियों को बड़ी सौगात, सर्विस रोड कार्य का राजवंत सिंह घुल्ली और डॉक्टर अनवर भसौड़ ने किया शुभारंभ। जबलपुर में बिगड़ी स्वास्थ्य व्यवस्था और लापरवाही के खिलाफ कांग्रेसियों का प्रदर्शन। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। बेंगलुरु में आयोजित शिखर बैठक को लेकर सियासत तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस के कथित व्यवहार को बेहद चौंकाने वाला और अफसोसजनक बताया है। उन्होंने मांग की कि कांग्रेस नेताओं को देश से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जोशी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में अनुशासन, गरिमा और समझदारी बनाए रखनी चाहिए थी। साथ ही कहा कि शिखर सम्मेलन में 29 देशों के नेता, 45 मंत्री और देश के उद्योग जगत के जुड़े प्रमुख लोग शामिल हुए थे। ऐसे महत्वपूर्ण मंच की अनदेखी करना और अनुचित व्यवहार करना देश की छवि के खिलाफ है। तो वहीं कांग्रेस पर फिर से तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस में अंदरूनी कलह चल रही है। मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रही खींचतान के चलते राज्य के हितों को नजरअंदाज किया जा रहा है। सीएम कौन होगा, यह उस पार्टी का आंतरिक मामला है, लेकिन सत्ता संघर्ष के कारण शासन व्यवस्था प्रभावित हो रही है। ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಮಂಡಿಸಿದಂಥ ಬಜೆಟಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಅವರು ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಭಾಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ MSMEಗಳಿಗಿರ್ಬೋದು, ಒಟ್ಟಾರೆ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಗ್ರೋತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಯಾವ ರೀತಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ, ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ಜನರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆಘಾತವಾಗಿದೆ, ಖೇದವಾಗಿದೆ. ಅವರು AI ಸಮಿಟ್ದಲ್ಲಿ 45 ಜನ, 29 ಜನ ಮಂತ್ರಿಗಳು, 45 ಜನ ಕಂಟ್ರಿ ಹೆಡ್ಸು, 29 ಜನ ಕಂಟ್ರಿ ಹೆಡ್ಸು, 45 ಜನ ವಿವಿಧ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ದೇಶದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ ಬಂದಿದ್ದರು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ AIದ ಭಾಳ ಪ್ರಮುಖರು ಬಂದಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವರು ಮಾಡಿದಂಥ ಕೃತ್ಯ ಅತ್ಯಂತ ಖಂಡನೀಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ಆದರೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಈ ವಿಷಯ ಪುನಃ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳೋದಂತಂದರೆ, ಮಾರ್ಗ್ರೆಟ್ ಅಳ್ವಾ ಅವರು ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು, ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್, ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮತ್ತು ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್ ಅವರು ಇದೇ ಮಾತನ್ನು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾದರೂ ಅವರು ದೇಶದ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಸರ್, ಈಗ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ದಲಿತ CM ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅವ್ರು ಯಾವುದು CM ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟದ. ಆದರೆ ಈ CM ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು, CM ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾರೆ, ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಮುಂದಿನ ಬಜೆಟ್ ಇವ್ರು ಮಂಡಿಸ್ತಾರೆ, ಇವ್ರು ಮಂಡಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಗಲಾಟೆ ಅಲ್ಲಿ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಆಡಳಿತ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕುಸಿದು ಹೋಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೇಳೋರಿಲ್ಲ, ಹೇಳೋರಿಲ್ಲ. ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ಸು ಟೋಟಲ್ ನಿಲ್ಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಇವರು
ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಈಗನೇ ಬಹುದೊಡ್ಡ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಂತೂ ಭಾಳಷ್ಟು ಕಡೆ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ಯಾರು ಕೇಳೋರಿಲ್ಲ. ಆನಂತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಅಧೋಗತಿಗಿಳಿದಿದ್ದಾವೆ. ಈ ರೀತಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದರೂ ಸಹಿತ ಇವರು ತಮ್ಮ ಜಗಳದಲ್ಲಿ ತೊಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಬಹುತೇಕ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಒಂದೆಲ್ಲೋ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿ ಅವರೇ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆನಂತರ ಅವರ ಪಕ್ಷದ ಆಂತರಿಕ ಒಂದು ಭಿನ್ನಮತದಿಂದಾಗಿ ಈಗ ಅವರೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದಲಿತ್ ಸಿ ಎಂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ದಲಿತ್ ಸಿ ಎಂ ಆದರೆ ನಾವು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ದಲಿತ್ ಸಿ ಎಂ ಈಗ ಯಾಕೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಇವರಿಬ್ಬರ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಆಯಾಮವನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೊರತಾಗಿ ದಲಿತ ಸಿ ಎಂ ಮಾಡಬೇಕನ್ನುವಂಥ ಕಳಕಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಸಾರಿ, ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿಯಿಂದ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೋವಿಂದ ಕಾರಜೋಳ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸರ್? ನಾನು ಅದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇವರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದಂಥವ್ರು ಇವತ್ತು ದೇ ಆರ್ ಅಂಡರ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ಅವ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಮಂತ್ರಿಗಳಲ್ಲೇ ತೀವ್ರವಾದಂಥ ಭಿನ್ನಮತ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ಬರು ಮಾತು ಕೇಳುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿಗಳಿಲ್ಲ. ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಶಿಷ್ಯಂದರು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಇವರ ಶಿಷ್ಯಂದರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಶಿಷ್ಯಂದರು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದರ ಒಟ್ಟು ಪರಿಣಾಮ ಏನಂದರೆ ರಾಜ್ಯ ಅಧೋಗತಿಗೆ ಇಳಿದಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರೇ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊನ್ನೆ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮೊದಲು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಇತ್ತು, ಮೊದಲಿತ್ತಂದು ನೀವ್ಯಾರು ಹೇಳೋರು? ನೀವೇನು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವುದೂ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ತುಂಬಿ ತುಳುಕ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಕರ್ನಾಟಕದ್ದು ಒಂದು ಅವತ್ತು ಕಲ್ಚರಲಿ ಆಲ್ಸೋ ಇಲ್ಲಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೆಂಗದಂತಂದ್ರೆ ಈ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಬೇಸಿಕ್ ಕಲ್ಚರ್ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಅದನ್ನು ಇವರು ಕೆಡಿಸಿಡುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ಚಂದ್ರಲಮಾಣಿ ಅವರು ಲೋಕಬಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಸರ್? ನೋಡಿ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಆಗಲಿ, ತನಿಖೆ ಮಾಡನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಓವರಾಲ್ ಅಲ್ಲಿನ ಒಟ್ಟು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್, ಮೊನ್ನೆ ಅವ್ರದ್ದೇನು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರ ಜೊತೆಗೆ ಭಾಳ ತೀವ್ರವಾದಂಥ ವಾಗ್ವಾದ ಆಯಿತು. ಅದಾದ ನಂತರ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರ ಒಂದು ಏನು ಇದು ಬಂದಿದೆ ಆಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗು, ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದರೆ ಅವರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಯಾರೂ ಅವ್ರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬರೋ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇದೇನಾದರೂ ಬೇಕಂತಾನೆ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರಾ, ಇದ್ರ ತನಿಖೆನೂ ಆಗಬೇಕು. ಅದು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಫಾಸ್ಟಿಂಗೇ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟದನ್ನು, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗೇ ಹೇಳಿದೆ, ಸೂರ್ಯಗರ್ದು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ सागर शहर स्थित कांची होटल में आजाद समाज पार्टी की तरफ से एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में पार्टी पदाधिकारियों ने संगठन की आगामी गतिविधियों और कार्यक्रमों की जानकारी साझा की। इस दौरान पार्टी के कोर कमेटी सदस्य मंडल दामोदर यादव के छोटे भाई केशव यादव के सगर आगमन पर कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। बैठक में संगठन विस्तार, बूथ स्तर तक मजबूती और आगामी रैली की तैयारियों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। पार्टी पदाधिकारियों ने बताया कि आजाद समाज पार्टी की संकल्प रैली आगामी 28 तारीख को सागर में निकाली जाएगी। रैली को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं और कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां सौंपी जा रही है। साथ ही पार्टी नेताओं ने कहा कि संकल्प रैली के माध्यम से जनता के बीच पार्टी की नीतियां और विचारधारा को प्रभावी ढंग से पहुंचाया जाएगा। स्वागत है सभी को, जय भीम। जैसा कि आप सबको पता है, जानकारी होगी सोशल मीडिया के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से भी, कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा ग्वालियर में हाई कोर्ट में स्थापित होनी थी, जो कि उच्च न्यायालय के जो हमारे न्यायाधिपति थे केत साहब, उन्होंने आदेश किया था। पर सरकार और कुछ मनुवादी मानसिकता के लोगों ने उसको उलझा करके बाबा साहब की प्रतिमा की स्थापना को बहुत समय से रोक रखा है। और उसी को स्थापित करने के लिए हमारे नेता भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी, बड़े भाई विनय रतन जी के निर्देश पर हमारे नेता राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य माननीय दामोदर सिंह यादव जी के नेतृत्व में संकल्प यात्रा नागपुर से प्रारंभ हुई थी, जिसके 2 चरण पूर्ण हो गए हैं और तीसरा चरण आपके सागर जिले में प्रारंभ होने जा रहा है, जो 28 तारीख को ये पूरा कार्यक्रम है। 28 तारीख को 12 बजे आपके सागर जिले में यात्रा प्रवेश करेगी।
12 बजे बाबा साहब की मूर्ति के पास भगवानगंज में जो है वहाँ एक विशाल आमसभा की जाएगी। उसके बाद यात्रा यहाँ से निकलेगी। 2 बजे रेहली में सभा की जाएगी। उसके बाद 3 बजे बंडा में स्वागत है और 5 बजे बड़ा मलेरा पहुँच के उसका रात्रि विश्राम पहले दिन का हो जाएगा। फिर अगले दिन यात्रा छतरपुर में रहेगी और फिर 1 को निवाड़ी और टीकमगढ़ में रहेगी। उसके बाद यात्रा का ये चरण समाप्त हो जाएगा। उद्देश्य क्या है इसका यात्रा का? उद्देश्य स्पष्ट है। माननीय दामोदर यादव जी ने, माननीय विद्रोही जी ने, माननीय बैरसिया जी ने, माननीय सुनील अस्ते जी ने, अनिल गुर्जर जी ने, हमारे प्रभारी विनोद अम्बेडकर जी ने, हमारे सब नेतृत्व ने ये संकल्प लिया है कि हम अपने महापुरुषों का अपमान कहीं से कहीं तक सहन नहीं करेंगे, जैसा कि अभी इस सरकार में ट्रेंड बन गया है। इसलिए पूरा संघर्ष कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि बाबा साहब की प्रतिमा की स्थापना शांति से या क्रांति से कैसे भी हो हम लगा के रहेंगे। हम लोग संवैधानिक लोग हैं। हमने पूर्व में ही, यात्रा के पूर्व में ही मोहन यादव जी को और सब लोगों को ये स्पष्ट कर दिया है कि हम चाहते हैं कि 14 मार्च से पहले बाबा साहब की प्रतिमा की स्थापना ग्वालियर में हो जाए, क्योंकि यह एक जन भावना का मुद्दा है जिसमें करोड़ों लोगों की भावना जुड़ रही। और अगर वो नहीं करते हैं तो 11 तारीख से हम अंतिम चरण, चौथा चरण लेके यात्रा का प्रारंभ करेंगे, जो दतिया जिले के गोराघाट से पदयात्रा के रूप में 14 मार्च को ग्वालियर पहुंचेगा। 4 दिन ये चरण चलेगा, जिसमें लाखों की संख्या में लोग पहुंचेंगे, मूर्ति की स्थापना करेंगे। साथ ही यूजीसी एक्ट में जो संशोधन हुए थे हम उसका समर्थन करते हैं और उसके समर्थन में भी जनजागृति लाने के लिए हम लोग यात्रा करते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट में मनु की मूर्ति लगी, बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, तो उनकी मूर्ति लगाने में क्यों व्यवधान डाल रहे हैं ये मनुवादी? बिल्कुल स्पष्ट है कि मनुवादी, वो भी कुछ लोग ही ऐसे हैं जो मनुवादी विचारधारा के अब बचे। उनसे ये नहीं झिलता कि कोई भी समानता की बात हो, कोई भी दलितों को, पिछड़ों को, गरीबों को, महिलाओं को, अल्पसंख्यकों को, यहाँ तक कि सामान्य वर्ग के भी ऐसे लोग जो गरीब हैं वो लेकर के, इसलिए वो नहीं चाहते कि वहाँ बाबा साहब की प्रतिमा की स्थापना हो। जनजागृति और जागरण की बात चल रही ओबीसी SC/ST में, PDA में, तो इस यात्रा से कितना लाभ होगा और समाज तक क्या मैसेज जाएगा? बिल्कुल स्पष्ट बात है भाई। हमारे दोनों चरणों में, जो नागपुर से हमने प्रारंभ किया, पहला चरण भोपाल समाप्त हुआ, दूसरा भोपाल से प्रारंभ होकर चौथे दिन में पिछोर में समाप्त हुआ। हमने ये देखा है कि जैसे जैसे यात्रा बढ़ रही है वैसे हमारे लोग हजारों की संख्या में जुड़ते चले जा रहे हैं। और हर एक किसी भी मिशन मूवमेंट को चलाने के लिए, लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि पिछड़ा वर्ग के लोगों को बड़ी देर में समझ आती है बात, क्योंकि वो आडंबर और पाखंड में बहुत ज़्यादा उलझे हुए। वो बागेश्वर के जो कोई बाबा है उन जैसे लोगों की झूठी बातों में, पर्ची वाले बाबा में, किसी न किसी में इस तरह से उलझे हुए हैं, फर्जी आडंबरी पाखंडियों में उलझे हुए हैं। उसके कारण वो गुमराह हो रहे हैं। तो जागृति आ रही है और बड़ा समर्थन मिल रहा है और हम आश्वस्त हैं कि जैसे जैसे हम लोग काम कर रहे हैं, OBC SC/ST, पिछड़ा, दलित, मुसलमान सब एक साथ आएगा और 28 में सरकार का परिवर्तन करके अपनी सत्ता स्थापित करेगा। यादव जी, कुछ घटनाएं हुई हैं, ब्राह्मणी का मुंह चोटी काटना, बेइज्जत करना ग्रामीण क्षेत्रों में, उसके बाद भी संभवतः OBC में ज़्यादा जागरण नहीं आ पा रहा है। अभी भी वही कर्मकांड चल रहे हैं। क्या मानते हैं, कैसे समाज में कुछ जागरण आएगा या लोग सोचेंगे? भैया, OBC बहुत टाइम से, आज की ये बात नहीं है, हजारों साल से उन्हीं कर्मकांडों में उलझा है। अगर OBC नहीं उलझा होता, आपकी बात से सहमत हूँ, तो कभी का मनुवाद समाप्त होकर पूरी तरह से बाबा साहब का अम्बेडकरवाद आज स्थापित हो चुका होता। लेकिन इस तरह की घटनाएं जो हो रही हैं वो वही सोच तो दिखाती हैं। पहली बात आप ये समझिए कि ये घटनाएं हो किसकी सह पे रही हैं? सरकार की सह पे घटना हो रही है। यादव की चोटी काट ली जाती है, यादव का मूत्र से शुद्धिकरण कर दिया जाता है, कुशवाहा को पैर धो के मंदिर के अंदर पानी पिला दिया जाता है, उसी को पैरों का पानी पिलाया जाता है, जाटव को पेशाब चटवा दी जाती है, कुर्मी बघेल महिला को कथा करने से रोक दिया जाता है। तो हम आदिवासियों के साथ क्या अन्याय हो रहा है उसके सिर पर पेशाब कर दी जाती है। ये लगातार चल रहा है और हम लोगों का संकल्प है भाई चंद्रशेखर आजाद जी के निर्देश पे कि हम गांव-गांव पहुंच रहे हैं, हम जगह-जगह पहुंच रहे हैं, जहां भी शोषण हो रहा है वहां लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग पहुंच रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि जागृति नहीं आ रही है, जागृति आना शुरू हो गई है। जैसे ही माननीय दामोदर सिंह यादव जी ने आडंबर पाखंड के खिलाफ जब लड़ाई की प्रारंभ किया था तो हमने ये देखा था कि सोशल मीडिया पर ही
पहले दिन आधे लोग से ज्यादा लोग विरोध में थे, आधे से ज्यादा लोग, आधे से कम लोग, बल्कि 25% लोग मात्र उस बात का समर्थन कर रहे थे। पर अब आप देखोगे कि सोशल मीडिया और सब जगह बड़ा समर्थन मिलना इस बात का हम लोगों को उत्साहित कर रहा है कि कहीं ना कहीं जागृति आना शुरू हो गई। हाँ, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हम आश्वस्त हैं कि जल्द ही 28 तक चुनाव से पहले हम लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं। आप देखोगे कि ये जागृति आएगी, सरकार में भी परिवर्तन करेंगे, और तब तक भी नहीं आएगी तो हम लोगों का तो उद्देश्य है भाई, मरते दम तक एक ही उद्देश्य लेके चल रहे हैं, इसी के लिए काम करें। ऐसा तो नहीं कोई राजनीति स्टैंड हो आप लोग का? राजनीति तो सबकी होती है भाई। पंजाब के संगरूर में धूरी में शहरवासियों को बड़ी सौगात मिली है, जहां 10.76 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले सर्विस रोड कार्य का शुभारंभ किया गया है। इस परियोजना का उद्घाटन मार्केट कमेटी धूरी के चेयरमैन राजवंत सिंह घुल्ली और पंजाब वक्फ बोर्ड के सदस्य डॉक्टर अनवर भसौर ने किया है। दरअसल लगभग 14 किलोमीटर लंबी सड़क से धूरी की ट्रैफिक समस्या का स्थायी समाधान होने जा रहा है। इस अवसर पर चेयरमैन राजवंत सिंह घुल्ली ने कहा कि यह सर्विस रोड धुरी के लिए मील का पत्थर साबित होगी। लंबे समय से चल आ रही ट्रैफिक जाम की समस्या का समाधान इस परियोजना से संभव होगा। ਅੱਜ ਧੂਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਸੂਆ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਪੌਣੇ 11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 14 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਵਰ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧੂਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਅਰੇ ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨਵਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ 32 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ, ਚੰਗੇ ਸਕੂਲ, ਚੰਗੇ ਹਸਪਤਾਲ, ਚੰਗੀਆਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਸੜਕਾਂ। ਧੂਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਲਕਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਹਲਕਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੂਰੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਛੜਿਆ ਹਲਕਾ ਸੀ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਧੂਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭਾਗ ਖੁੱਲੇ ਨੇ ਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੋਂ ਚੋਣ ਲੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਧੂਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਨਿਪਰੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਲਾਈਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਖੇਤ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤ ਆ ਉਹ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਅਸੀਂ ਇਦੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰ ਦੂੰਗੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਰੋਡ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਸਾਰੀ ਸਮੁੱਚੀ, ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਵਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਜੇ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ 'ਚ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੂਆ ਦੇ ਨੇੜੇ ਖੜੇ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੂਆ ਬੰਦ ਕਰਿਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਕੇ ਬੰਬ ਵੀ ਛੱਡਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋ ਇਮਾਨਦਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲੇ ਨੇ ਹਲਕੇ ਨੂੰ। ਚਾਹੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਚਾਹੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਉਸ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੋਨੇ ਸਾਈਡਾਂ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜੀ ਟਾਈਲ ਲੱਗਣੀ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਰੋਡ ਬਣਨਾ ਨਾਲ 10 ਤੋਂ 18 ਫੁੱਟ ਰੋਡ ਬਣਨੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਰੋਡ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗੂਗਾ। ਇਹਦੇ ਟਰੈਕ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਬਣਨਾ, ਉਹ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪੌਣੇ 11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇਹ ਸੂਏ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਸੜਕ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੌਕ ਟਾਵਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ 1.5 ਕਰੋੜ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੂਗਾ, ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 1 ਕਰੋੜ 41 ਲੱਖ ਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਇੰਚਾਰਜ ਰਮਨ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉੱਥੇ ਲਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ 50 ਲੱਖ ਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। 50 ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਈਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ 4 ਕਲੋਕ ਲੱਗਣੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ 1 ਕਰੋੜ 41 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੂਗਾ। ਇਹ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਪੈਸਾ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਪੌਣੇ 11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭੇਜਿਆ। 14 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਇਹ ਸੜਕ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪੌਣੇ 11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੁਛ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਿਵੇਂ ਲਾਉਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 1 ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ, ਘੁੱਲੀ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਜੀ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਜੀ,
ਮਨੀ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ 75 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਅੱਗੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕੋਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 10 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਸੜਕਾਂ ਗਲੀ ਜੋ ਸੂਏ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਹੈ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ ਆਪਣੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ 54 ਕਰੋੜ 76 ਲੱਖ ਦਾ ਸੂਏ ਵਾਲਾ ਪੁਲ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਲਦ ਹੀ ਬਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਰੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੋ ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧੂਰੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਧੂਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲੀ ਆ। ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਸੀ, ਆ ਪੁਲ ਤੋਂ ਧੂਰੀ ਰੋਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲੱਡੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਰੋਡ ਤੋਂ ਪੁਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ 11 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਇਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਮੁਹੱਲਾ ਵਾਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁੱਲੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ OSD ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁਣੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਤੀ, ਕੋਈ ਛੱਪੜ ਲਈ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਫਿਰਨੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਵੇਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਨਵੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਗੱਫੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਸੀਗਾ ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਹਲਕਾ ਧੂਰੀ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਗੱਫੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸਤੇ 11 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ 14.25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕ ਬਣਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਬਣ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਧੂਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਵੇਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਚਾਹੀਦਾ। जबलपुर में बिगड़ी स्वास्थ्य व्यवस्था और लापरवाही के खिलाफ कांग्रेसियों ने धरना प्रदर्शन किया। स्वास्थ्य सेवाएं जो आम जनता की मूलभूत आवश्यकता है, वर्तमान में अत्यंत दयनीय स्थिति में है। कटंगी अस्पताल में विगत 6 महीने से एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं है। आपातकालीन स्थिति में एम्बुलेंस पाटन मझौली से आती है, जिसमें अत्यधिक विलंब होता है और कई बार मरीजों की जान तक चली जाती है। रात्रिकालीन समय में अस्पताल केवल एक नर्स के भरोसे संचालित होता है। रात्रि में भी डॉक्टरों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए, ऐसी अनेक मांगे को लेकर मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। कटंगी नगर के ग्रामवासियों आम नागरिकों द्वारा कटंगी अस्पताल में जर्जर व्यवस्था और स्वास्थ्य सुविधा तथा अनियमितताओं के संबंध में ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में मुख्य रूप से 10 बिंदु हैं, जिसमें मुख्य है एम्बुलेंस समय पर नहीं मिलती, 108 नहीं मिलती, डॉक्टर समय पर नहीं रहते, सफाई सुविधाएं का अभाव है, महिला डॉक्टर की कमी है, दवाई एवं चिकित्सा उपकरणों की भी कमी है, अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडरों की कमी है। इन्हीं समस्त बिंदुओं को लेकर 10 बिंदुओं का ज्ञापन दिया गया है, जिसे अभी मेरे द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन को उचित माध्यम से प्रेषित कर दिया जाएगा। शासन को चला जाएगा, शासन निर्णय ले पाएगी और BMO साहब हैं, आपके स्तर से जो होगा वो आप करेंगे, बाकी शासन स्तर से शासन द्वारा समस्याओं का समाधान किया जाएगा। इसमें देखिए सबसे मुख्य तो है कि कटंगी अस्पताल में 6 माह से एम्बुलेंस जो है 108 वो यहाँ पर नहीं है, ठीक है। जबकि कितना महत्वपूर्ण है 108 का होना, तो वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। 108 का अस्पताल में होना 24 आवर यहाँ पर रहना चाहिए। कब किस स्थिति में किसकी क्या परेशानी हो जाए तो उसकी मांग की गई है। और यहाँ पर जैसे लेडीज़ डॉक्टर नहीं है उसकी मांग की गई है, यहाँ पर नर्सों की कमी है उसकी मांग की गई है, और यहाँ पर डॉक्टर कभी भी आप आए समय पर कोई यहाँ डॉक्टर नहीं मिलता उसकी, जबकि 8-8 घंटे की यहाँ पर कम से कम 60-70 हज़ार जनता है इस क्षेत्र में।
इस 60-70 हजार की जनता के लिए अस्पताल है और इसमें व्यवस्थाओं नाम की कोई चीज़ नहीं है। हमने ये भी देखा है कि जो डिलीवरी पेशेंट होती है महिलाएं, जो उनको भी यहाँ पे कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं है, जबलपुर रेफर कर दिया जाता है। जबकि अगर ये चीज़ यहाँ पर इतनी छोटी छोटी सुविधाएं अगर यहाँ पे ना मिले तो फिर इसका कोई मतलब नहीं इस बिल्डिंग का खड़े रहने का यहाँ पर, है ना। तो ये कम से कम यहाँ के जो क्षेत्रीय जो प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, मैं उनसे भी आग्रह करना चाहता हूँ कि आप ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है स्वास्थ्य से संबंधित, वो उनको भी इसमें गंभीरता से विचार करना चाहिए और इन समस्याओं को दूर करना चाहिए। कटंगी अस्पताल में विगत 6-7 महीने से गंभीर लापरवाही देखने में सामने आ रही है। इसमें 108 का ना होना, जननी एक्सप्रेस का ना होना, महिला चिकित्सक का ना होना, दवाइयों का ना मिलना, ये छोटी छोटी समस्याएं हैं जिनका निराकरण त्वरित तौर पर किया जा सकता है। अब 108 आज एक लोगों की ज़रूरत बन चुकी है। बीमारी और समस्या किसी को बताकर नहीं आती, लेकिन 108 यहाँ रहती नहीं है और उसका नतीजा ये है कि पिछले 6 महीने में 35 साल के नौजवानों की जानें चली गई। और जब हमने 108 की बात की तो आज अब मैं पत्रकार साथियों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप लोग आज भी देख लें कि आज भी कटंगी में हमारे आंदोलन के वक्त भी 108 उपलब्ध नहीं है। ये एक गंभीर लापरवाही है और कहना चाहिए कि शासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। मैं आज इस आंदोलन के माध्यम से हम लोगों ने शासन को चेतावनी दी है और एक 7 दिन का समय दिया है, और 7 दिन के अंदर इन व्यवस्थाओं को दुरुस्त नहीं किया गया तो कांग्रेस एक बड़े पैमाने पर आंदोलन करेगी और शासन को और अधिकारियों को बाध्य करेगी कि उनको इन मांगों को पूरा करना पड़ेगा और करना पड़ेगा। अमरेली जिले के जाफराबाद के भटवादर गांव में खेत में काम कर रहे किसानों पर जहरीली मधुमक्खियों ने हमला कर दिया, जिसके बाद आनन फानन में किसानों को इलाज के लिए राजूला सिविल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इस घटना के बाद भटवादर गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। अभी के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे पल्स 24 न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।